Hello friends, welcome to iExamB. There were a lot of queries regarding legal officer recruitment in the regulatory bodies in Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India and NABARD. So in this video, we will discuss about the legal officer recruitment. We will discuss the eligibility criteria, exam pattern and syllabus in order to clear this exam. So let's start with Reserve Bank of India. RBI Grade B Legal Officer. दिस इज अ ग्रेड बी रिक्रूटमेंट, तो आप डायरेक्टली स्केल 2 लेवल पे रिक्रूटेड हैं. दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी एस्पिरेंट, फॉर एवरी लॉ ग्रेजुएट. अब इसकी एलिजिबिलिटी देखते हैं. The age requirement for this exam is 21 to 32 years, which is relaxable by 3 years in case you have completed your LLM and 5 years in case you are PhD in law. The next is your education qualification, and what is required is bachelor degree in law, that means LLB with minimum 50% marks if you belong to general category or 45% for SC, ST, PWBD. Another thing that is required for RBI grade B, अब क्योंकि ये डायरेक्ट ग्रेड बी का रिक्रूटमेंट है तो इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है, एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड इज अ मिनिमम ऑफ 2 years. और कौन कौन से फील्ड में ये एक्सपीरियंस हो सकता है, दैट इज ऑल्सो मेंशन्ड. The fields from which this experience can be taken is you can be working as an advocate, legal consultant, legal assistant, associate in an advocate's or solicitor's office or law firm after being enrolled with the Bar Council. The next is as a law officer in legal department of a large bank, financial institution, statutory corporation, company, state or central government. तो मतलब आप किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी में लॉ ऑफिसर हैं. And the third kind is as a full-time teacher in a law college or university teaching law. So all these experiences, a minimum of 2 years, is a must to appear for RBI grade B. Now looking at the scheme of the exam, there are 2 papers. Paper 1 is your law and paper 2 is descriptive English. अब जो पेपर 1 है इसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. एक तो ऑब्जेक्टिव है और दूसरा डिस्क्रिप्टिव है. दिस ऑब्जेक्टिव which is part A, which will contain law questions, it will have 15 questions of 30 marks. और एक और important चीज, जो ये objective questions हैं, these will have 4 answer options and there is no penalty. तो सारे 15 के 15 questions attempt करने हैं. And going to descriptive in law in paper 1, this will have 4 subsections. इसमें questions आते हैं from various acts, from various areas. वो हम syllabus में देखते हैं किस area से questions आते हैं. This descriptive is of 120 marks and the duration for paper 1 is 3 hours. अब आपका जो पेपर 2 है वो descriptive English है. इसमें भी 4 questions आते हैं जिसमें से एक essay है of 40 marks, एक précis है 24 marks का, comprehension है, comprehension और précis का passage same है. And this comprehension is of 16 marks, and at the end there is drafting of a report, letter or circular which will have 20 marks. In total this will have 100 marks, this will have 150 marks और इसका भी ड्यूरेशन 3 hours का है. तो आपका ये जो टोटल पेपर, टोटल एग्जाम है, दिस इज ऑफ 250 मार्क्स. अब आप यहाँ देखिए जो ये क्वेश्चन पेपर 1 है विच इज योर लॉ पेपर, दिस विल बी सेट बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश और आंसर भी इंग्लिश या हिंदी में लिखे जा सकते हैं. अब इसमें होता क्या है, जो ये ऑब्जेक्टिव पेपर है ये तो ऑनलाइन होगा. जो ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है इसमें 2 तरीके के पेपर हो सकते हैं. एक तो ये है कि आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है और आपको अपना आंसर टाइप करना है. दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखेगा और आपको आंसर शीट पर लिखने हैं और वो शीट सबमिट करनी है, जैसे आप लोग अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में अपीयर होते थे अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में. एंड फॉर दिस डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश ये कंपल्सरीली आपको टाइप करना होता है. सो दिस विल डिपेंड अपॉन कि हैंडआउट में किस तरीके से डिटेल दी हुई है. नाउ वी विल मूव टू द सिलेबस. अब लॉ का क्या सिलेबस है? The syllabus that is mentioned in the notification consists of these acts which are most important: Constitution law, administrative law, principles of statutory interpretation, law of evidence, Contract Act, Transfer of Property Act, Negotiable Instruments Act, Registration Act, Code of Civil Procedure and Legal Drafting. दिस इज ओनली इंडिकेटिव, मतलब इसके अलावा भी कुछ और एक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं और वो आपको टाइम टू टाइम जब आप कोर्स को एक बार चेकआउट करेंगे, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा किस किस एरिया से क्वेश्चंस आते हैं.
Now moving to the next regulatory body, that is SEBI. सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में लीगल ऑफिसर की ग्रेड ए की रिक्रूटमेंट होती है, स्केल 1 रिक्रूटमेंट होती है. लेट्स लुक एट इट्स एलिजिबिलिटी. अब इसमें एज होती है मैक्सिमम 30 ईयर्स. आरबीआई ग्रेड बी लीगल में 21 to 32 है, क्योंकि उसमें 2 ईयर एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है. यहाँ पर 30 ईयर्स है मैक्सिमम एज. Then moving to education qualification, again the same, bachelor degree in law with minimum 50% marks, and since it is grade A recruitment there is no experience required. तो ये तो हो गई आपकी eligibility. Now moving on to scheme of exam, इसमें क्या होता है, 2 रिटर्न एग्जाम्स होते हैं. पहले फेज 1 विच इज अ स्क्रीनिंग, जो सिर्फ क्वालिफाइंग है. अगर आपने क्लियर कर लिया आप फेज 2 में अपीयर होंगे. These phase 2 marks are used to decide who will appear for the interview, and also final merit list में phase 2 और interview दोनों के marks calculate होते हैं. So if you look at the exam pattern of phase 1, पेपर 1 सभी स्ट्रीम्स के लिए कॉमन है, जिसमें आपका QRE और GA है, दैट इज क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस. इसमें क्या होता है, 20 क्वेश्चंस होते हैं हर एक सेक्शन से. सो टोटल 80 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के, और इसमें मिनिमम कट ऑफ दिया हुआ है, दैट मीन्स मेरिट बेस्ड होता है. अगर आपके इस पेपर में 30 मार्क्स आ जाएं तो दे आर सफिशिएंट. नाउ मूविंग टू पेपर 2, इसमें हम लोग स्पेसिफिकली लीगल की बात कर रहे हैं. तो अगर आप लीगल में देखें तो MCQs होंगे ऑन स्पेशलाइज सब्जेक्ट रिलेटेड टू स्ट्रीम, दैट इज आपके लॉ से. नाउ इन दिस देयर विल बी अराउंड 50 क्वेश्चंस ऑफ 100 मार्क्स. एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा. टाइम अगेन गिवन इज 40 मिनट्स, और इसका मिनिमम कट ऑफ 40% है, दैट मीन्स आपको 40 मार्क्स स्कोर करने हैं. एग्रीगेट मिनिमम कट ऑफ जो दिया हुआ है वो है 40% आउट ऑफ 200, मतलब कि 80 मार्क्स. तो आपको ये 30 और 40 के अलावा 10 मार्क्स और स्कोर करने हैं, और आप फेज 1 क्लियर कर लेंगे और फेज 2 में अपीयर होंगे. नाउ मूविंग टू फेज 2, इसमें भी 2 पेपर हैं. पेपर 1 सभी के लिए कॉमन है, विच इज योर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, एंड पेपर 2 अगेन लीगल, MCQs टाइप होगा, 50 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के होंगे. एक सेपरेट वीडियो में मैंने ये कट ऑफ एनालिसिस किया है बहुत अच्छे से, आप उसको देख सकते हैं. आपको समझ आएगा कि ये वेटेज का क्या क्राइटेरिया है. उसमें पेपर 1 की 1/3 वेटेज है, पेपर 2 की 2/3 वेटेज है. तो इसका क्या क्राइटेरिया है और आपको कितना सेफ स्कोर टारगेट करना चाहिए ताकि आप ये एग्जाम क्लियर कर सकें, ये सब आप उस वीडियो में देख सकते हैं. नाउ मूविंग टू दिस सिलेबस. नोटिफिकेशन में सिलेबस भी बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, बहुत क्लियरली डिफाइंड है अलोंग विद द वेटेजेस, एंड सेबी स्टिक्स टू द वेटेज. प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप चेकआउट करें तो उसमें आपको पता चलेगा कि जितनी परसेंटेज मेंशन्ड है उतने ही क्वेश्चंस आए थे अप्रोक्सीमेटली. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसमें 10% वेटेज है. सो आउट ऑफ 50 देयर वर नियर अबाउट 4 to 5 क्वेश्चंस. नाउ द अदर पार्ट ऑफ द सिलेबस आर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, then criminal law, IPC, code of criminal procedure, law of evidence, code of civil procedure. इसमें सिर्फ part 1 और part 2 है. Then there is administrative law and principles of natural justice, then jurisprudence and interpretation of statutes, important Latin terms and maxims, law of torts and consumer protection act, so on. आप ये देखकर पढ़ सकते हैं. इसी तरीके से फेज 2 पेपर 2 जो आपका लॉ सिलेबस है वो भी बहुत क्लियरली डिफाइंड है. यू कैन चेक दिस आउट. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं. नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट रेगुलेटरी बॉडी, दैट इज NABARD. NABARD ग्रेड ए लीगल ऑफिसर की रिक्रूटमेंट भी होती है, और इसमें क्या एलिजिबिलिटी है. अगेन आप देखिए ये ग्रेड ए का रिक्रूटमेंट है, इसमें भी कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए. एज रिक्वायरमेंट इज फ्रॉम 21 to 30 ईयर्स. Again, your education qualification is bachelor degree in law with minimum of 50% marks or LLM with 45%, and there is no experience required here as well. इसका एग्जाम पैटर्न अगर आप देखें, स्कीम ऑफ द एग्जाम में there is a prelims exam and then there is main exam. Prelim exam has only one paper, it is qualifying. और जो मेन एग्जाम है उसमें 2 पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2. पेपर 1 आपका इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव है, पेपर 2 विच इज लीगल इज ऑब्जेक्टिव. तो मेंस एग्जाम का पैटर्न सेबी फेज 2 की तरह कॉमन है, थोड़ा बहुत एक्ट का डिफरेंस होता है. तो अगर हम स्कीम ऑफ द एग्जाम में प्रीलिम्स एग्जाम को पहले देखें तो NABARD ग्रेड ए लीगल ऑफिसर एग्जाम में दीज आर ऑल द एरियाज फ्रॉम विच क्वेश्चंस विल कम. एक आपका रीजनिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज है, जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है. ये तो सेबी पेपर 1 फेज 1 से मैच हो गया.
The extra topics here are computer knowledge, economic and social issues with special focus on rural India, agriculture and rural development with special focus on rural India. तो आपके ये 3 सेक्शंस हैं जो आपको इस एग्जाम में अलग से पढ़ने हैं. नाउ मूविंग ऑन टू मेन एग्जाम. मेन एग्जाम में पेपर 1 आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है जिसमें एक एसे होगा प्रेसी 20 मार्क्स का. Then there will be question comprehension questions on the Presi para 20 marks and at the end report letter writing 100 marks. Descriptive answers have to be typed using the keyboard. और अगर आप पेपर 2 की बात करें, this is your professional knowledge, that is law के questions. इसमें 65 questions होंगे 100 marks के. There will be 5 options. 35 questions होंगे 2 marks के और 30 questions होंगे 1 mark के. जो टेस्ट की लैंग्वेज है वो बाइलिंगुअल होगी. सो दिस इज द पैटर्न ऑफ द मेन एग्जाम. लेट्स मूव ऑन टू द सिलेबस. लॉ का क्या सिलेबस नबार्ड के लिए पढ़ना है. इफ यू लुक, ये सिलेबस मेंशन है नोटिफिकेशन में. द पेपर विल बी बेस्ड ऑन प्रोफिशिएंसी इन इंटरप्रेटिंग वेरियस लॉज. एंड व्हाट आर दोज लॉज? बैंकिंग, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, कंपनी, इंडस्ट्रियल एंड कोऑपरेटिव लॉज, साइबर लॉज, कॉमर्स, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस, rural non-life insurance, direct financing, staff matters and good experience in drafting various types of documents. तो ये तो नोटिफिकेशन में मेंशन था कि इन एरियाज में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए. अब बाद में हमें सिलेबस अलग से भी मिला था जिसमें ये मेंशन है. ये सब एक्ट्स, ये सब टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, Trade Union Act, Arbitration and Conciliation Act, Negotiable Instrument Act, Indian Easement Act, Specific Relief, Indian Succession, Hindu Succession, Information Technology, RTI and SURFACE. तो ये सभी एक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं फॉर NABARD पेपर 2 इन मेंस. आप देखिए काफी टॉपिक्स तो तीनों एग्जाम्स में कॉमन है. बस अब जिस रेगुलेटरी बॉडी का जिस फील्ड में एक्सपर्टीज है उसके लॉज कुछ एक्स्ट्रा हैं उस एग्जाम में. सो दिस वाज द एंटायर आइडिया. क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है. अब एक चीज मैं आपको पूरे वीडियो के दौरान काफी बार मेंशन कर रही थी, आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा. एट iExamBee's वेबसाइट यू कैन गेट प्रीवियस ईयर पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट. If you visit our website, there under the previous year paper tab, you will see RBI, NABARD, SEBI और इसमें आपको previous year paper आसानी से मिल जाएगा. This is the tab which I have opened for SEBI. आपने SEBI को क्लिक किया. SEBI ग्रेड ए फेज 1 में आपको लॉ और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिलेंगे और यहाँ पर फेज 2 में आपको लॉ के भी पेपर मिलेंगे. देखिए यहाँ पर SEBI लीगल फेज 1 पेपर 2 मेमोरी बेस्ड पेपर. इस तरीके से आपको सभी रेगुलेटरी बॉडीज के यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर मिल सकते हैं. ऑल्सो एट iExamBee यू गेट फ्री मॉक टेस्ट ऑफ ईच ऑफ द एग्जाम. यहाँ पर भी आपको आरबीआई, सेबी, नबार्ड के सभी कोर्सेज, सभी स्ट्रीम्स के फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे एंड यू कैन चेक आउट योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन. आप देख सकते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं और आप अपने प्रिपरेशन को भी टाइम टू टाइम चेकआउट कर सकते हैं. अगर आपको इन तीनों रेगुलेटरी बॉडी के एग्जाम्स में से किसी से भी रिलेटेड कुछ भी डाउट है, आप हमें कॉल कर सकते हैं ऑन द नंबर 9205524028. आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं. आप हमारे मेंटर भी सेशन में एनरोल करके यू कैन हैव अ सेशन विद देयर एक्सपर्ट्स. एट प्रेजेंट at iExamBee we are running a new year offer. We are giving flat 40% on all the online courses. If you are interested in any of the course, you can visit our website. You can also check out the demo of these courses attached in the description below. As I have mentioned, for any query, you can call us on the number which is mentioned on the screen. You can also write to us at hello@iexambee.com. Do not forget to subscribe to our channel, both Target RBI and iExamBee, for getting all the updated information, for getting your queries resolved. You can also drop a comment to get your queries resolved. Thank you so much.